So today we are going to discuss equations of first order and first degree. So here are few equations and there are lots of types of differential equations. So we are starting from the basic ones. So we shall discuss shortly here separable equations, equations where variables are separable. ये वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल्स को हम सेपरेट करते हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस and then हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट इक्वेशंस and after that उसके बाद linear equations. So now starting from the first type separable equations. If in an equation it is possible to collect all functions of x and dx यानी x के तमाम functions और उसके derivative dx on one side and all the functions of y and dy on the other side, then variables are said to be separable. Separable variable वो होते हैं जिनमें x का फंक्शन और dx को हम इक्वलिटी साइन के एक साइड पे ले जाएं और y के फंक्शंस और dy के इक्वलिटी के दूसरी तरफ ले जाएं. So take functions of x and dx on one side and functions of y and dy on the other side. Then we can say that equation has its variables separated. So general form, very simple general form is that you can see here fy dy, f is a function of y and dy is on the left and gx and dx is on the right. So for example, generally here you can see we have fx function of x, gy function of y and dx. So this is not separated yet. You have function of x and function of y both together. यहाँ पे x का फंक्शन y का फंक्शन दोनों एक साथ है dx के साथ. अगेन उसके बाद प्लस fx फंक्शन ऑफ x उसमें फिर फंक्शन ऑफ y और dy एक साथ है. सो ये मिक्स हुई हुई इक्वेशन. तो इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? हाउ कैन वी सेपरेट इट? व्हाट इज ऑड हियर? यहाँ पे ऑड चीज क्या है? यहाँ पे आप देखें fx और dx तो है लेकिन gy जो है ना वो ऑड है. तो इसको हमें खत्म करना है. यहाँ पे fx gy dy है. g is a function of y and dy are okay, बट fx जो है यहाँ ऑड है. तो इसके दो तरीके हैं. वन इज दैट टेक दिस टर्म ऑन द राइट साइड, माइनस का fx gy dy हो जाएगा और फिर हम क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं. दूसरा ये तरीका है जो ऑड टर्म्स हैं, एक फंक्शन gy है एक फंक्शन fx है, इनसे हम कर दे डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. सो व्हेन वी डिवाइड दिस बाय gy एंड fx, gy is cancelled and we have fx upon fx. तो ये आगे यहाँ पे किया हुआ है हमने. fx divided by small fx gx and when this is divided by gy and fx तो fx कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कैपिटल gy स्मॉल gy डिवाइडेड बाय कैपिटल gy dy. तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गया. अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. इस स्टेप के बाद पहले वेरिएबल सेपरेट की जाते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट किया जाता है तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है. बिल्कुल सिंपल एक छोटी सी इक्वेशन है स्मॉलेस्ट. ये यहाँ पे इसमें इक्वलिटी का साइन है जो कि थोड़ा सा क्लियर नहीं है. dy upon dx is equal to x square upon y. So there are two ratios to division, dy divided by dx x square y. तो जैसा कि सेपरेबल इक्वेशन का रूल है कि dx और x का फंक्शन एक तरफ होना चाहिए. सो वी हैव हेयर x स्क्वायर एंड हेयर dx, इनको साथ होना चाहिए था. dy और इस y को साथ होना चाहिए था. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. टेक दिस y here with dy, y dy is equal to x squared dx. वेरिएबल सेपरेट हो गए. So on the right side we have function of x and dx and on the left we have y and dy.
So you integrate both sides to get the solution. तो y का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू x का इंटीग्रल होगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस c. That is the solution. Or still you can cross multiply 2 on this side and 3 on this side. 3y square is equal to 2x cube plus 2c. This is constant, so you will get again another constant. This constant will be multiple of 2. So next is homogeneous equation, but let us continue with some more example of separable equations, which are a few pages away from here. But for the differential equation, you must know the various integral and differential formulas. ये कुछ basic integration और differentiation के formulas हैं जो कि बार बार differential equations में आएंगे, repeat होंगे. These formulas will be repeated again in problem, so you should remember these by heart. एक तो basic जो है फार्मूला इंटीग्रेशन का वो है कि पावर में 1 ऐड होगा और वो जो रिजल्ट आएगा उससे डिवाइड होगा. दिस इज अ बेसिक सिंपल पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन. एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x has its integral minus cos x का इंटीग्रल sin x है. सिमिलरली secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tangent x है. So these will be used, and secant x tan x का इंटीग्रेशन secant x है. And another important integral is 1 upon x. 1 upon x का इंटीग्रेशन है ln x, and e power x का इंटीग्रेशन होगा e power x है. Similarly, you should remember the derivatives, that ex का डेरिवेटिव ex है, ln x का डेरिवेटिव 1 upon x है, secant x का डेरिवेटिव secant x and tangent x है. And the same way, derivative of tangent x is secant square x, and derivative of sin x is cos x, and cos x has its derivative minus sin x. So we move on to exercise of separable equations. The first problem is cosec y. Remember that जो trigonometric functions थे sin, cosine, tangent, और उनके अपोजिट होते हैं. sin का अपोजिट cosec और जो कि फुल फॉर्म है cosecant. cos का अपोजिट जो है इनवर्स उसका वो है secant, और tan का होता है cotangent. तो cosec जो है वो sin का अपोजिट है, secant cos का अपोजिट है. अब यहाँ पे आप फंक्शन देखें, cosec इज ए फंक्शन ऑफ y, लेकिन इसके साथ dx अटैच है. dx अटैच विद द फंक्शन ऑफ y, एंड secant x फंक्शन ऑफ x, बट dy इसके साथ अटैच है. तो इसका सॉल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप ये, क्योंकि पहले हम इस फंक्शन को राइट साइड पे ले जाएं तो नेगेटिव हो जाएगा. उसके बाद ये जिसके रेसिप्रोकल हैं, इन्वर्स है, इनको हम जो ओरिजिनल इनका फॉर्म है उसमें लेके आएंगे. लेकिन उससे पहले इसको आप क्रॉस डिवाइड कर लें. फंक्शंस जो थे उनको हम सेपरेट कर लें. यानी यहाँ dy है तो कोसेक को आप यहाँ ले आए, dy अपॉन कोसेक y. sec x को dx के पास होना चाहिए, तो sec x को dx के नीचे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है dy से, तो ये dx के नीचे डिनोमिनेटर में sec x आ जाएगा. माइनस की साइन यहाँ जो राइट पे वो अपनी जगह रहेगी. नाउ एज यू रिमेंबर, secant x जो है वो इन्वर्स है cos x का, तो ये अपान में रेसिप्रोकल में है, तो इसको जब हम सीधा करेंगे तो ये cos x dx के साथ हो जाएगा. cosec इन्वर्स था साइन का, y का फंक्शन है, so that will be minus sin y dy. So now it is very clear that variables are separated, और cos x dx के साथ है, y का फंक्शन dy के साथ है. अब इनकी सिंपली इंटीग्रेशन करनी है. तो यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि इसको अगेन वापस, जैसे ये लेफ्ट पे था सारी वैल्यू, राइट पे 0 था, तो ये सब वैल्यू ये लेफ्ट पे ले हैं, और यहाँ सब माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया है. राइट पे सिर्फ 0 रहेगा. सो नाउ वी डू इंटीग्रेट बोथ साइड्स. सो cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin y का इंटीग्रेशन माइनस cos y is equal to integral of 0 is constant c. That's the general solution of the equation. We have another question here. y 1 plus x dx. अब यहाँ भी फंक्शंस x और y वेरिएबल के मिक्स हैं dx के साथ, यहाँ भी x और y के मिक्स हैं dy के साथ. So there are two terms, one is this one with dx, other one is with dy. So what we do, जो हमने
इससे पहले एग्जाम्पल में किया था जब हमने एफ एक्स और जी वाई से डिवाइड किया था इक्वेशन को, जो आठ थोड़ी टर्म्स हैं उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे डी एक्स वन प्लस एक्स ये दोनों सही है, लेकिन वाई थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे वन प्लस वाई ठीक है डी वाई के साथ, लेकिन एक्स थोड़ा डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है एक्स वाई, उनसे आप बोथ साइड डिवाइड कर दें। डिवाइड बोथ साइड में एक्स वाई। When this term is divided by xy, y is cancelled, we have upon x. When this term is divided by xy, x is cancelled, we have upon y. 1 plus x upon x dx, 1 plus y upon y dy is equal to 0. So I hope now variables are separated. Now to make it convenient for integration में आसानी के लिए हम ये करते हैं कि LCM को सेपरेट करते हैं. So let's for convenience we separate the variable. Here the LCM x will divide on both sides. So that will be 1 upon x plus x upon x, and x upon x cancel हो गया तो वो 1 होगा. Here when y is separated, 1 upon y plus y upon y, and y upon y is cancelled, that makes 1. So now it will be easy to integrate. Integrate 1 upon x. तो पहले अभी हमने फार्मूलाज में देखा 1 अपन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा ln x. देन वी हैव 1 कांस्टेंट जिसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा x. उसके बाद 1 अपन y. सो यू शुड बी केयरफुल. ये आपको देखना है कि आप इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं. अब dy आ गया तो विद y विद रिस्पेक्ट टू dy विल बी 1 ln y. अगर यहाँ x होता dx होता तो इसका इंटीग्रेशन होना था x अपन y, लेकिन ये dy है तो ये हो जाएगा ln y प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेटेड इज y इज इक्वल टू c. नाउ इनको हम अरेंज कर लेते हैं, x को और y को पहले लिखते हैं और ln वाले log वाले वो बाद में लिख लेते हैं. log का एक रूल है, इफ यू रिमेंबर इन एलिमेंट्री क्लासेस, ये log में दो फंक्शन जब ऐड हो रहे हैं दैट कैन बी चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन. ln x plus ln y using log rule we have ln xy. So this is the final result. We have question number 3 here. So let's see कि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं. यहाँ पे भी वेरिएबल्स मिक्स हैं, dy अपॉन dx है, फिर यहाँ पे y स्क्वायर साइन x एक साथ है. सो लेट्स सेपरेट द वेरिएबल. फर्स्ट स्टेप, टेक इट टू द राइट. इसको राइट पे ले आए ताकि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस डिवाइड करने में आसानी हो. अब ये है माइनस का y स्क्वायर, यहाँ है dy, यहाँ अपान में dx है. इस dx को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, क्योंकि साइन x यहाँ है तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx. ये जो y स्क्वायर था इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ आके ये dy को करेगा डिवाइड, dy अपन y स्क्वायर. नाउ वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, वी हैव टू इंटीग्रेट. नाउ y का पावर 2 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो y पावर -2 हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे. और राइट साइड पे माइनस का, यहाँ पे साइन x थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे एक्चुअली माइनस का साइन x है, दैट विल बी इंटीग्रेटेड. So as the rule of integration, power rule, -2 plus 1 upon -2 plus 1. We have y of -2 plus 1 is equal to y of power -1, और -2 plus 1 का रिजल्ट हो गया -1. टेक राइट साइड, साइन एक्स से इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c. सो दैट्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब ये जो माइनस से डिवाइड हो रहा है तो हम माइनस को यहाँ पे रखेंगे, और जो y का पावर -1 है उसको पॉजिटिव करना है, इसको नीचे ले आए तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचेगा क्योंकि y अब डिनोमिनेटर में आ गया. व्हेन देयर इज नथिंग इन न्यूमरेटर वी राइट 1, और अभी हो गया 1 अपन y. पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली वी कैन राइट इट -1 अपन y इज इक्वल टू cos x प्लस c. अब यहाँ ये हुआ है कि जो माइनस का 1 अपन y है वो एक्चुअली राइट पे आया है, तो ये हो गया प्लस का 1 अपन y plus cos x. Or c, you take it on the other side, constant will remain constant, so we are not here focusing that it's negative or positive. So c जो है वो या माइनस का होगा या प्लस का होगा, so we are writing it just c. So
take -1/y here और c को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, so that will be c. So 1/y plus cos x is equal to c. So hope you are finding it easier to solve the separable equation. इसको हम दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं. सिंपली हमें ये करना है कि पहले वेरिएबल्स को देखना है कि वो dy और dx के साथ हैं या नहीं, वो अलग अलग होंगे तो उनको एक साथ करना है. dy के साथ y का फंक्शन, x के साथ dx होगा जो कि x का फंक्शन होगा, उसके साथ dx होगा. वो सेपरेट करके फिर आपको इंटीग्रेशन के फार्मूलाज याद होने चाहिए, उससे आपको इंटीग्रेट करना है. सिंपली 2 स्टेप है. तो एक और क्वेश्चन है, dy upon dx is equal to x square upon y in bracket we have 1 plus x cube. अब यहाँ पे जो ऑड है थोड़ा सा, ये पूरा फंक्शन x का है, इसके साथ y है. ऐसा करते हैं इस y को वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं y dy, और जो dx है ये यहाँ आ जाएगा राइट पे, तो ये आ गया x के फंक्शन के साथ. नाउ वी हैव टू सिंपली इंटीग्रेट बोथ साइड्स. लेफ्ट साइड पे हम y dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2. प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी राइट पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है. अब इसमें जहाँ पे न्यूमरेटर का पावर 1 नंबर लेस होता है डिनोमिनेटर के पावर से, तो वहाँ एक इंटीग्रेशन में बहुत यूजफुल फार्मूला है. वो ये है कि अगर ऊपर डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के फंक्शन का, तो उसका रिजल्ट होता है ln द मेन फंक्शन, मीन ln fx वो फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है, वो f डैश x अपॉन fx इज इक्वल टू ln fx प्लस c. यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है, अगर x क्यूब को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो बनता है 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 - 1 2 पावर होगा 3x स्क्वायर, और ऊपर आपने देखा कि x स्क्वायर हमें मिला हुआ है. तो ये सिचुएशन ऐसी ही है, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे वाली वैल्यू का, लेकिन डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, लेकिन ये सिर्फ x स्क्वायर है. तो इसको 3x स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट्स से हम इसको 3x स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से अगर इसको 3x स्क्वायर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इक्वेशन को बैलेंस में रखने के लिए हमें बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा. What we say that multiply right integral by 3 and again divide by 3. जो multiply by 3 होगा वो अंदर multiply करेगा और इंटीग्रल साइन के बाहर हम 1/3 से डिवाइड कर देते हैं. Now derivative of 1 is 0 and derivative of x cube is 3x square. We can use this formula, and this formula says simply ln numerator denominator, क्योंकि न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का, तो ln एंड देन यू राइट द डिनोमिनेटर. तो इसमें आप 1/3 तो बाहर है कांस्टेंट, वो वहीं रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है. ln और डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस c ऑफ इंटीग्रेशन. सो नाउ दिस इज इंटीग्रेटेड. क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन बोथ साइड्स इन द सेम वे. 3 will come on left, we have 3y square. 2 will come on right, 2 ln 1 plus x cube plus c. Another thing that you can do, we have left it here. ये जो 2 है एक पावर रूल है लॉग का, कि लॉग की जो वैल्यू होती है आगे उसमें जब पावर होता है वो लॉग से पहले लिखते हैं, तो इसी तरह हम इसको बाद में भी ले जा सकते हैं. दिस इज नीड बेस्ड. अगर प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना होता है तो हम इस 2 को इस ब्रैकेट के स्क्वायर में ले आते हैं. वी कैन राइट इट एज ln 1 plus x cube whole square plus c. So we see if there are some more questions or not. So here's another question using the same formula. Secant square x tan y dx plus secant square y tan x dy. So dx and secant square x are both functions of x, but tangent y is a bit odd. Similarly, on the right side, we have secant square y and dy both of y, but tangent x is again an odd one. So what we can do here, we can divide this whole equation by tangent x and tangent y, which are odd ones.
So we will get this result directly. जो एक स्टेप छोड़ के जो थर्ड स्टेप है क्वेश्चन के बाद, अगर वो रिजल्ट हम डायरेक्ट लेना चाहें तो अगर हम इसको टेंजेंट x और टेंजेंट y से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट y के साथ कैंसिल होगा और आंसर होगा सेकेंड स्क्वायर x अपन टेंजेंट x। यहाँ पे टेंजेंट x टेंजेंट y जब डिवाइड होगा तो टेंजेंट x कैंसिल हो जाएंगे और सेकेंड स्क्वायर y अपन टेंजेंट y। तो एक मेथड तो ये है सॉल्व करने का। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो मेथड कुछ इस तरह से है कि ये जो वैल्यू है ये आप राइट पर ले जाएं। तो अब इसमें ये है कि जब ये राइट पे वैल्यू जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का सेकेंड स्क्वायर वाई 10x dy, और उसके बाद यहाँ पे किया गया क्रॉस डिवाइड, क्योंकि टेंजेंट x ऑड है इसको लेफ्ट ले आए हैं, यहाँ टेंजेंट y ऑड है इसको राइट पे ले आए हैं, तो y को dy के साथ और x dy, अभी वेरिएबल सेपरेट हो गए। सो यू हैव गॉट द बोथ चॉइसेस जो आप अप्लाई करना चाहें, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। So now this is very simple, integrate both side and interestingly you will see, जो अगर आपको टेबल याद हो डेरिवेटिव्स के तो आपको याद होगा टेंजेंट x का डेरिवेटिव था सेकेंड स्क्वायर x। So we have same condition on both sides, derivative is numerator, denominator is has its integral। So जो नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है। तो जब इंटीग्रेट बोथ साइड्स होगा तो यूजिंग दिस फार्मूला वी हैव, इस फार्मूला में एक मिस्टेक है, यहाँ पे ln मिसिंग है, यहाँ पे ln fx प्लस c होगा। So we have ln and denominator is 10x, ln 10x minus ln 10y plus c, this is integrated। Now take this term on the left side, ये हो गया positive, so ln 10x plus ln 10y is equal to ln c। So using the law of logarithm we have ln 10x multiplied by tangent y is equal to ln c, so take antilog on both sides, we have tangent x tangent y is equal to c। So this is now integrated। So when we move on further, we have another example। So that's x minus x y square dx and y minus yx square dy। So you can see here y square is a bit odd and x square is a bit odd here. These are all y's, these are all x's। So what can we do here? So first you see the equation, पहले इक्वेशन को देखें क्या है, इसमें x और दोबारा x नजर आ रहा है। ऐसा करते हैं, इसको कॉमन लेके देखते हैं, x को कॉमन ले लें तो यहाँ से x जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से x जाएगा, माइनस का y स्क्वायर बचेगा dx। यहाँ से इसी तरह y है तो y कॉमन ले लें, 1 बचेगा माइनस x स्क्वायर dy। अब ऐसा करते हैं, इसको जो हम करते आए इसको राइट पे ले जाएं तो ये माइनस का टर्म हो जाएगा सारा। अब देखें क्या ऑड है, यहाँ x ऑड है और x dx के साथ x है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर ऑड है, ओके। और यहाँ पे y dy है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑड है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ ले जाएं x dx के पास, 1 माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ ले आए y dy के पास। Now these are separated, variables are separated। Again we have same situation, we have x स्क्वायर है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, लेकिन यहाँ है x और 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो इस टोटल टर्म का डेरिवेटिव आ रहा है 0 माइनस 2x मीन्स माइनस 2x, बट वी हैव x, तो हम क्या करें कि माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई करें, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा और इजीली हम इसको इंटीग्रेट करके फार्मूला ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने माइनस 2 मल्टीप्लाई किया तो बाहर हम माइनस 2 से डिवाइड भी करेंगे। लेट्स सी व्हाट्स ऑन द राइट, राइट पे माइनस तो एक ऑलरेडी है और इसका डेरिवेटिव आ रहा है माइनस का 2y, तो सिंपली आपको एक 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि माइनस ऑलरेडी है और एक 2 से डिवाइड करना है। वी हैव द कंडीशन हियर, सो हमने माइनस 2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों तरफ और डिवाइड भी किया है। तो
you see that when there is 1 upon 2 on both sides, and that can be cancelled, but after integration इसको आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि ये अंतर 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल आपस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सिर्फ टर्म बचेगा वो बचेगा माइनस, और इंटीग्रेट हो गया ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा ln 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ln c। जब ये दोनों लॉग में आ रहे हैं तो हम c को भी लॉग के टर्म्स में लिख सकते हैं। So what we have done here, we have taken this negative log value to the right, तो ये पॉजिटिव हो गई, और राइट वाला जो ln 1 माइनस वाई स्क्वायर वो वैसे ही पॉजिटिव है। और यूँ समझें कि ln c को हम यहाँ पे लेके आए हैं, ln c की जो वैल्यू है वो इस साइड पर हम लेके आए हैं। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे लॉग का रूल, जो जब दो लॉग्स की एडिशन हो रही है तो हम उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। So ln 1 minus x square into 1 minus y square is equal to ln c. Take anti-log both sides where c is equal to 1 minus x square and 1 minus y square. So we have another similar question. इसमें already common लिया हुआ है x 1 plus y square dx plus y 1 plus x square dy is equal to 0. You can do it as your practice. And then we have another question, and of that we have homogeneous equation that will be next lecture. So the question is sin x plus cos x dy. So these both functions are of x, but we have dy, and again cos x minus sin x dx. Now these are again functions of x, but we have dx. So there's one odd thing कि यहाँ पे dy है। अब हम इसका क्या करें, हमें dy को अलग करना है। तो हम ऐसे करते हैं कि cos x माइनस साइन एक्स को ले जाते हैं राइट पे, तो वो हो जाएगा नेगेटिव का, और dy को इधर ही रखते हैं क्योंकि हमें x के सब फंक्शन एक साथ रखते हैं, तो sin x प्लस cos x को हम राइट साइड पे ले जाके डिवाइड कराते हैं। सो यू विल गेट this type of function. Now the total values of x and dx are on the right and only dy on the left. So variables are separated. अब आप देखें कि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, वो यहाँ पे मौजूद है। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो सिंपली you will use the formula integration ln sin x plus cos x, डिनोमिनेटर आ जाएगा इंटीग्रेशन में, वही फार्मूला जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज करते आए हैं, एंड माइनस रिमेन्स सेम प्लेस। लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y प्लस ln c। सो वी अगेन ये जो -1 है इसको आप यूजिंग द लॉग पावर रूल इसमें पावर में रखेंगे, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। नाउ अगेन यू सी यू विल यूज द मल्टीप्लिकेशन रूल, जो एडिशन है लॉग में वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगा ln और sin x प्लस cos x इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय c। सो ये जो पावर -1 है इसको आप अपान में ले आएंगे तो पावर प्लस में 1 हो जाएगा, दैट विल बी ln c upon sin x plus cos x. So the final answer is ln c upon sin x plus cos x. So see you in next lecture for homogeneous equations. So this has been about 30-minute video, and I will upload it without any editing, and I hope this is the first video that I have been successful to continue it for without any mistake for 30 minutes. So let's now upload it.
So if you have any comments and you need any other videos or the lectures on maths, you can simply write it in comment marks. Thank you.